شہر کامل میں عمیرہ احمد پارٹ 39۔ واپس واشنگٹن پہنچ کر وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح مصروف ہو گیا تھا، مگر اس بات فرق یہ تھا کہ وہ مسلسل پاکستان میں فرقان اور ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ فرقان اسے اسکول کے بارے میں ہونے والی تفصیلات سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ یونیسیف میں اس طرح کا کام اس کی جاب کا حصہ تھا۔ اسے اس کام کے لیے بہت اچھا معاوضہ دیا جاتا تھا، مگر پاکستان کے اس گاؤں میں اسے اس طرح کے کام کا آغاز وہ بھی اپنے وسائل سے چند سال پہلے کے سالار سکندر کو جاننے والے کبھی بھی اس بات کا یقین نہیں کرتے۔ خود اسے بھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہ کبھی اس طرح کا کام کرنے کا سوچ سکتا تھا، مگر یہ صرف اس پروجیکٹ کے لیے اپنے اکاؤنٹ سے پیسہ نکلواتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا۔ اس کے لیے یہ پروجیکٹ کم از کم مالی لحاظ سے مشکل نہیں تھا۔ پچھلے 3 سال میں اس کے اخراجات میں بہت کمی آ گئی تھی۔ بہت ساری وہ چیزیں اس کی زندگی سے نکل گئی تھیں جن پر وہ اندھا دھند پیسہ خرچ کرتا تھا۔ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رقم جان کر حیران ہوا تھا۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جس سے پیسہ جمع کرنے کی توقع کی جا سکتی۔ ایم فل کے لیے اس کے پاس اسکالرشپ تھا، اسے کم از کم اس کے لیے اپنے پاس سے کچھ خرچ کرنا نہیں پڑا تھا۔ اس دن اپنے اپارٹمنٹ میں چلتے پھرتے اس نے پہلی بار وہاں موجود تمام چیزوں کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ میں کہیں بھی کوئی بھی مہنگی چیز نہیں تھی، بلکہ سامان بھی بہت محدود تھا۔ اس کا کچن بھی کھانے پینے کی چیزوں سے تقریباً خالی تھا۔ کافی، چائے، دودھ اور اسی طرح کی چند دوسری چیزیں۔ اس کا اپنے اپارٹمنٹ میں بہت کم وقت گزرتا تھا۔ جو وقت گزرتا تھا وہ سونے میں گزرتا۔ یونیسیف میں اپنی جاب پر کام کرتے ہوئے بھی اس کے پاس پہلے سے موجود کپڑوں اور دوسری اشیاء کا اتنا انبار موجود تھا کہ وہ اس معاملے میں بھی لاپرواہی برتتا رہا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے آخری بار اس طرح کی کوئی چیز کب خریدی تھی۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور یونیسیف میں اپنے کچھ کلاس فیلوز کے علاوہ وہ نیو یارک میں کسی کو نہیں جانتا تھا، یا پھر دانستہ طور پر اس نے خود کو ایک محدود سرکل میں رکھا تھا اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کی دوستی بہت رسمی قسم کی تھی۔ واحد چیز جس پر وہ خرچ کرتا رہا تھا وہ کتابیں تھیں۔ اس لائف اسٹائل کے ساتھ اگر اس کا اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی تھی تو یہ کوئی خلاف توقع بات نہیں تھی۔ آفس، یونیورسٹی، فلیٹ، اس کی زندگی کے معاملات میں چوتھی چیز کوئی نہیں تھی۔ ایم فل کے دوران سالار نے یونیسیف چھوڑ کر یونیسکو جوائن کر لیا۔ ایم فل کرنے کے بعد سالار کی پوسٹنگ پیرس ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک فیلڈ آفس میں کام کرتا رہا تھا، مگر اب اسے یونیسیف کے ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ گزشتہ سالوں سے وقتاً فوقتاً چھوٹے بڑے پروجیکٹس کے سلسلے میں پیرس جاتا رہا تھا، مگر اس بار وہ پہلی دفعہ لمبے عرصے کے لیے وہاں جا رہا تھا، ایک آشنا دنیا سے نا آشنا دنیا میں، اس دنیا میں جہاں وہ زبان تک سے واقف نہیں تھا۔ نیو یارک میں اس کے بہت سے دوست تھے، یہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا جسے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہو۔ یونیسیف میں کیے جانے والے انتھک کام کی طرح وہ یہاں آ کر ایک بار پھر اس طرح کام کرنے لگا تھا، مگر اسلام آباد کے نواحی علاقے میں شروع کیا جانے والا وہ اسکول یہاں بھی اس کے ذہن سے محو نہیں تھا۔ بعض دفعہ اسے حیرت ہوتی کہ اپنی جاب میں تعلیم سے اتنا گہرا تعلق ہونے کے باوجود آخر اسے کبھی فرقان کی طرح وہ اسکول کھولنے کا خیال کیوں نہیں آیا۔ اگر اس اسکول کے بارے میں وہ کئی سال پہلے سوچ لیتا تو شاید یہ اسکول بہت مستحکم بنیادوں پر کھڑا ہو سکتا تھا۔ مجھے پاکستان سے زیادہ محبت نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے میں کوئی گہری انسیت رکھتا ہوں، اس نے شروع کی ملاقات میں ایک بار ڈاکٹر فرقان سے کہا تھا۔ کیوں؟ فرقان نے پوچھا تھا۔ کیوں کا جواب تو نہیں دے سکتا، بس پاکستان کے لیے کوئی خاص احساسات میرے دل میں نہیں ہیں، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ تمہارا ملک ہے؟ ہاں، یہ جاننے کے باوجود۔ امریکہ کے لیے خاص احساسات ہیں؟ امریکہ سے محبت ہے؟ فرقان نے پوچھا۔ نہیں، اس کے لیے بھی میرے دل میں کچھ نہیں ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ فرقان نے اس بار حیرانی سے اسے دیکھا۔ دراصل میں وطنیت پر یقین نہیں رکھتا، اس نے فرقان کو حیران دیکھ کر وضاحت کی۔ یا پھر مجھے ان جگہوں کے لیے محبت پیدا کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ میں کل کسی تیسرے ملک میں رہنے لگوں گا تو امریکہ کو بھی یاد نہیں کروں گا۔ تم بڑے عجیب آدمی ہو سالار، فرقان نے بے اختیار کہا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی اپنے ملک کے لیے یا اس جگہ کے لیے کوئی خاص احساسات ہی نہ رکھے جہاں وہ رہتا ہے؟ فرقان کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، مگر اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ پیرس آنے کے بعد اسے نیو یارک کی کوئی چیز یاد نہیں آئی تھی۔ نیو ہیون سے نیو یارک آتے ہوئے بھی اسے وہاں ایڈجسٹمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر پانی کی مچھلی تھا۔ وہ ان دنوں یونائیٹڈ نیشنز کے زیر اہتمام ہونے والی کسی ریجنل کانفرنس کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔
वो पर्ल काउंटी नेशनल में ठहरा हुआ था। इसे वहाँ एक बिजनेस मैनेजमेंट के इदारे में कुछ लेक्चर्स देने थे और फुरकान के साथ अपने स्कूल के सिलसिले में कुछ अमवार भी तय करना था। वो लाहौर में इसके क़याम का तीसरा दिन था। इसने रात का खाना कुछ जल्दी में खा लिया और इसके बाद वो किसी ज़रूरी काम से होटल से बाहर निकला। शाम के 7:30 हो रहे थे। माल रोड पर जाते हुए अचानक इसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ड्राइवर गाड़ी से उतर कर टायर को देखने लगा। चंद मिनटों के बाद इसने सलार की खिड़की के पास आकर कहा, सर, गाड़ी में दूसरा टायर मौजूद नहीं है। मैं आपके लिए कोई टैक्सी ला देता हूँ, आप इस पर चले जाएं। सलार ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। नहीं, मैं खुद टैक्सी रोक लेता हूँ, वो कहता हुआ उतर गया। कुछ दूर एक पार्किंग में कुछ टैक्सियाँ नज़र आ रही थीं। सलार का रुख इसी तरफ था जब एक कार ने एकदम इसके पास आकर ब्रेक लगाई। गाड़ी सामने से आई थी और इसके रुकने पर सलार ने फुटपाथ पर चलते हुए इसमें बैठे शख्स को एक नज़र में ही पहचान लिया। वो आकिफ था। वो अब गाड़ी की ड्राइविंग सीट से उतर रहा था। लाहौर में कुछ साल पहले इसकी सरगर्मियों का वो एक मरकज़ी किरदार था। आकिफ और अकमल, वो इन्हीं दोनों के साथ अपना ज़्यादा वक्त गुजार रहा था और इससे सलार की दोबारा मुलाकात कई सालों के बाद हो रही थी। वो इन सब को छोड़ चुका था। पाकिस्तान या लाहौर आने पर इसने कभी इनके साथ रब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। इन लोगों ने पिछले कई सालों में बार बार इससे रब्ता करने की कोशिश की थी, मगर इनकी इन कोशिशों के बावजूद सलार इनसे बचने की कोशिशों में कामयाब रहा था। वो अब इतने सालों के बाद एकदम इस तरह अचानक इसके सामने आ गया था। सलार के एहसाब एकदम तन गए थे। आकिफ बड़े जोश व खुर्रम के आलम में इसकी तरफ बढ़ा। सलार, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम हो। कहाँ गायब थे इतने सालों से? तुम तो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए थे। कहाँ थे यार? और अब यहाँ क्या कर रहे हो? हुलिया ही बदल लिया है। कहाँ गए वो बाल? लाहौर में कब आए हो? आने की इतला क्यों नहीं दी? इसने यके बार दीगरे सवालात की बौछार कर दी। इसने सलार के अंदाज में झलकने वाली सर्टमहरी पर गौर नहीं किया था। सलार के जवाब देने से पहले ही आकिफ ने दोबारा पूछा, यहाँ माल पर क्या कर रहे हो? गाड़ी ख़राब हो गई थी, मैं टैक्सी की तरफ जा रहा था। सलार ने कहा। कहाँ जा रहे हो? मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आकिफ ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। नहीं, मैं चला जाता हूँ, टैक्सी पास ही है, सलार ने तेज़ी से कहा। आकिफ ने इसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। चलो अंदर बैठो, इसने बाजू पकड़ कर खींच लिया। सलार सटपटा गया, लेकिन इसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इसका मूड बहुत ख़राब होने लगा था। तुम तो स्टेट पढ़ने चले गए थे और फिर मुझे पता चला कि तुम वहाँ जॉब कर ली है, फिर अचानक पाकिस्तान कैसे? आकिफ ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। क्या छुट्टियाँ गुजारने आए हो? हाँ, सलार ने मुख्तसरन कहा। वो इस तरह से जान छुड़ा रहा था। क्या कर रहे हो आजकल? आकिफ ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी में काम कर रहा हूँ। यहाँ लाहौर में ठहरे हो? पीसी में। अरे, पीसी में क्यों ठहरे हो? मेरे पास आते या मुझे फ़ोन करते। कब आए यहाँ? आकिफ ने कहा। कल। बस तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगे, ज़रूरत नहीं है होटल में रहने की। नहीं, मैं कल सुबह इस्लामाबाद वापस जा रहा हूँ, सलार ने रानी से झूठ बोला। वो आकिफ से हर कीमत पर जान छुड़ा लेना चाहता था। इसे इससे उलझन हो रही थी, या फिर ये शायद इसके साथ गुजर जाने वाला माजी था जो इसे तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। अगर कल इस्लामाबाद वापस जा रहे हो तो फिर आज मेरे साथ रहो, खाना खाओ मेरे साथ घर चलकर, आकिफ ने ऑफ़र की। खाना मैं 10 मिनट पहले ही खाकर निकला हूँ, फिर भी मेरे साथ घर चलो, तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाऊँगा। शादी हो गई तुम्हारी? हाँ, 3 साल हो गए, आकिफ ने कहा। फिर पूछा, और तुमने कर ली शादी? नहीं। क्यों? बस कुछ मसरूफियात थी इसलिए, सलार ने कहा। गुड, अभी आज़ाद ही फिर रहे हो। आकिफ ने एक गहरा सांस लिया। खुशकिस्मत हो, सलार ने जवाब में कुछ नहीं कहा। आकिफ ने इससे बात करते हुए ग्लो कंपार्टमेंट खोलकर अंदर से एक कैसेट निकालनी चाहिए। इसका ध्यान ज़रा भटका और कैसेट निकालते निकालते ग्लो कंपार्टमेंट से बहुत सी चीज़ें सलार की गोद और नीचे इसके पैरों में गिर पड़ी। टू बैड, आकिफ ने बेख्तियार कहा। सलार झुककर चीज़ें उठाने लगा। आकिफ ने गाड़ी के अंदर लाइट जला दी। वो इन चीज़ों को समेटकर ग्लू कंपार्टमेंट में रखने लगा। जब वो ठिठक गया, किसी ने इसके जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ा दिया। ग्लू कंपार्टमेंट के एक कोने में इयररिंग्स पड़े हुए थे। सलार के हाथों में बेख्तियार लर्जिश आई। बायां हाथ बढ़ाकर इसने इन इयररिंग्स को बाहर निकाल लिया। वो अब इसके हाथ की हथेली पर गाड़ी के अंदर जलती रोशनी में चमक रहे थे। वो बेयकीनी के आलम में इसे देखता रहा था। बहुत साल पहले इसने इन इयररिंग्स को किसी के कानों में देखा था। एक बार
2 बार, 3 बार, चौथी बार वो इन्हें अब देख रहा था। इसे कोई शुबा नहीं था, वो उमैमा हाशिम के एयरिंग्स थे। वो आंखें बंद करके कागज़ पर इनका डिज़ाइन उतार सकता था। हर पेओ हमको आकिफ ने इसकी हथेली से वो एयरिंग्स उठा लिए। किसी ने जैसे सलार का सक्ता तोड़ दिया था। आकिफ इन इयररिंग्स को एक बार फिर ग्लू कंपार्टमेंट में रख रहा था। ये इयररिंग्स, वो अटकते हुए बोला, ये तुम्हारी बीवी के हैं? सलार ने अपने सवाल को मुकम्मल किया। बीवी के? आकिफ हंसा। कम ऑन यार, बीवी के होते तो मैं यहाँ रखता। सलार पढ़ के झपकाए बगैर इसे देखता रहा। फिर इसने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, यार ये एक गर्लफ्रेंड मेरी पिछले रात मेरे साथ थी। ये इयररिंग्स मेरे बेडरूम में छोड़ गई थी। कुछ इमरजेंसी में ही जाना पड़ा इसे, क्योंकि रोहा वापस आ गई थी। मैंने ये इयररिंग्स लाकर गाड़ी में रख दिए, क्योंकि आज मेरा इसकी तरफ जाने का इरादा है। आकिफ बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसे बता रहा था। गर्लफ्रेंड? सलार के हलक में जैसे फंदा लगा। हाँ गर्लफ्रेंड, रेड लाइट एरिया में ही एक लड़की है, अब इधर डिफेंस में शिफ्ट हो गई है। क्या क्या नाम है इसका? उमैमा, रेड लाइट एरिया की लड़की तो कभी नहीं हो सकती। यकीनन मुझे गलतफहमी हुई है, इसने आकिफ को देखते हुए सोचा। स्नोबर, आकिफ ने इसका नाम बताया। सलार ने चेहरा मोड़कर हाथ में पकड़ी चीज़ें ग्लू कंपार्टमेंट में रखकर इसे बंद कर दिया। इसे वाकई गलतफहमी हुई थी। आकिफ गाड़ी की लाइट्स ऑफ कर चुका था। सीट की पुछ से टेक लगाकर सलार ने गहरा सांस लिया। मगर ये इसका असली नाम नहीं है। आकिफ ने बात जारी रखी। असली नाम इसका उमैमा है। सलार के कानों में कोई धमाका हुआ था, या फिर यह पिघला हुआ शीशा था जो किसी ने इसके कानों में उंडेल दिया था। आकिफ अब स्टीयरिंग पर थोड़ा आगे झुके हुए होठों में दबाकर सिगरेट लाइटर से जला रहा था। तुमने 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 क्या कहा? सलार की आवाज़ में लर्जिश आ गई। क्या कहा? आकिफ ने सिगरेट का कश लेते हुए देखा। नाम बता रहे थे तुम इसका? हाँ उमैमा, तुम जानते हो इसे? आकिफ ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सलार को देखा। खिड़की का शीशा अब इसने खोल दिया था। सलार एकटक इसे देख रहा था, यूं जैसे वो आकिफ को पहली बार देख रहा था। एयरिंग्स अब इसकी मुट्ठी की गिरफ्त में थे। मैं क्या पूछ रहा हूँ यार, तुम जानते हो इसे? आकिफ ने होठों से सिगरेट उंगलियों में मुंतकिल करते हुए कहा। मैं सलार ने कुछ और बोलने की कोशिश की। अपनी आवाज़ से इसे किसी खाई से आती महसूस हुई। रेड लाइट एरिया वो आखिरी जगह थी जहाँ इसने कभी उमैमा को होने का तस्वर किया था। गाड़ी के अंदर चलने वाली रोशनी में आकिफ ने बहुत गौर से देखा। इसके जर्द पड़ते हुए चेहरे को, इसके हाथ की बंद मुट्ठी को, इसके कपकपाते हुए होंठों को, इसने बेरब्त बेमायने लफ्ज़ों को। आकिफ मुस्कुरा दिया। इसने इसके कंधे पर तसल्ली आमेज़ अंदाज में थपकी दी। डोंट वरी यार, क्यों घबरा रहे हो? वो सिर्फ गर्लफ्रेंड है मेरी। अगर तुम्हारे और इसके दरमियान भी कुछ है तो कोई बात नहीं। हम तो पहले भी बहुत कुछ शेयर किया करते थे, याद है तुम्हें? आकिफ ने कहका लगाया। फिर इसने बारूद में तीली फेंकी। ये तो फिर लड़की है। माल रोड पर कितना रश था? आकिफ कितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था? इन सवालों के साथ साथ सलार ने यह भी नहीं सोचा कि स्टीयरिंग पर मौजूद शख्स पर झपटने की सूरत में खुद इसके साथ क्या हो सकता था। इसने पलक झपकने में आसिफ को गले से पकड़ लिया। आकिफ का पाँव बेख्तियार ब्रेक पर गया। गाड़ी एक झटके से रुकी। वो दोनों पूरी कुव्वत से डैशबोर्ड के टकराए। सलार ने इसके कॉलर को नहीं छोड़ा। आकिफ आवाज़ बाख्तगी के आलम में चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम? इसने सलार के हाथों से अपना गला छुड़वाने की कोशिश की और इसे दूर हटाने की कोशिश की। पागल हो गए हो? हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट? सलार जवाबन घुर्राया। इसके हाथ एक बार फिर आकिफ की गर्दन पर थे। आकिफ का सांस रुकने लगा। इसने कुछ गुस्से और कुछ हवास बाख्तगी के आलम में सलार के मुंह पर मुक्का मारा। सलार बेख्तियार झटका खाकर पीछे हटा। इसके दोनों हाथ अब अपने मुंह पर थे। आकिफ की गाड़ी के पीछे मौजूद गाड़ियां हाथ पर हाथ दे रही थीं। वो सड़क के वस्त में खड़े थे और ये इन दोनों की खुशकिस्मती थी कि इस तरह अचानक गाड़ी रुकने पर पीछे आने वाली गाड़ी में से इनसे टकराई नहीं थी। सलार दोनों हाथों से अपना जबड़ा पकड़े हुए अपनी सीट पर धोरा हुआ था। आकिफ ने अपने होशो आवाज़ को काबू रखते हुए गाड़ी को कुछ आगे एक सुनसान जिली सड़क पर मोड़ते ही एक तरफ रोक लिया। सलार तब तक सीधा हो चुका था और अपने हाथ की हथेली से होठों को जबड़े को दबाने और विंडस्क्रीन से बाहर देख रहा था। चंद पहले का इश्तियाल अब गायब हो चुका था। आकिफ ने गाड़ी रोकी, सीट पर बैठते बैठते इसकी तरफ मुड़ा और कहा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेरे गले क्यों फड़ रहे थे? मैंने क्या किया है?
बुलंद आवाज़ में बात करते करते इसने डैशबोर्ड से टिश्यू का बॉक्स उठाकर सलार की तरफ उठाया। इसकी सलार की शर्ट पर खून के चंद कतरे देख लिए थे। सलार ने ये के बाद दीगरे टिश्यू निकाल लिए और होंठ और उसको साफ करने लगा जहाँ से खून आ रहा था। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता अभी, आकिफ ने कहा। सलार को हाथ साफ करते हुए दोबारा एयरिंग्स का ख्याल आया। इसने एकदम झुककर पायदान में एयरिंग्स ढूंढना शुरू कर दिए। फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ जाती या आकिफ बात अधूरी छोड़कर इसे देखने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? वो एयरिंग्स, सलार ने मुख्तसरन कहा। आकिफ बेख्तियार चिल्लाया। क्या प्रॉब्लम है सलार? मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके एयरिंग्स हैं। मेरा प्रॉब्लम है? ये एयरिंग्स इसका प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। सलार एकदम रुक गया। इसे अपनी नामाकुल हरकत का एहसास हुआ। वो सीधा होकर बैठ गया। टिश्यू को खिड़की से बाहर फेंकते हुए इसे दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। आकिफ माथे पर बल लिए इसे देख रहा था। तुम्हारा और सनोबर का कोई? आकिफ बात करते करते मुअत्तद अंदाज में रुक गया। वो अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था कि पिछली बार इसके जुमले में ऐसा कौन सा लफ्ज़ था जिसने इसे मुश्तइल किया था। वो दोबारा गलती दोहराना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी, सलार ने इसके रुकने पर कहा। ओके फ़ाइन, आकिफ कुछ मुतमईन हुआ। तुम और सनोबर? वो फिर रुक गया। तुमने कहा था इसका नाम उमैमा है। सलार ने गर्दन मोड़कर इसका चेहरा देखा। आकिफ को बेख्तियार इसकी आंखों से खौफ आया। वो किसी नॉर्मल इंसान की आंखें नहीं थीं। वहशत, बेचारगी, खौफ, वो हर तासुर लिए हुए थी। हाँ, इसने मुझे एक बार बताया था। शुरू में एक बार अपने बारे में बता रही थी, तब इसने मुझे बताया था। इसका हुलिया बता सकते हो मुझे? सलार ने मोहम सी उम्मीद के साथ कहा। हाँ, क्यों नहीं? आकिफ गड़बड़ाया। बहुत खूबसूरत है, फेयर, टॉल। आकिफ अब अटकने लगा। काली आंखें हैं, बाल भी पहले काले थे, अब डाई किए हुए हैं इसने। और क्या बताऊं? वो जिच हुआ। सलार ने आंखें बंद करके विंड स्क्रीन की तरफ चेहरा कर लिया। घुटन कुछ और बढ़ गई थी। उमैमा हाशिम है इसका नाम? वो विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए बड़बड़ाया। पता नहीं, बाप का नाम तो नहीं बताया इसने, ना ही मैंने पूछा, आकिफ ने कहा। उमैमा हाशिम ही है वो बड़बड़ाया। इसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मैं ज़िम्मेदार हूँ इस सब का। किस चीज़ के ज़िम्मेदार हो तुम? आकिफ को तजस्सुस हुआ। सलार खामोशी से विंड स्क्रीन से बाहर देखता रहा। आकिफ जवाब का इंतज़ार कर रहा था। चंद मिनट की खामोशी के बाद सलार ने गर्दन मोड़कर इससे कहा, मैं इससे मिलना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त। आकिफ कुछ देर इसे देखता रहा, फिर वो डैशबोर्ड से मोबाइल उठाकर एक कॉल मिलाने लगा। कुछ देर तक वो कोशिश करता रहा, फिर इसने कंधे उचकाते हुए कहा, इसका मोबाइल ऑफ है, पता नहीं वो घर पर मिले या ना मिले, क्योंकि अब रात हो रही है। और वो आकिफ चुप होकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। लेकिन मैं तुम्हें ले जाता हूँ इसके घर। आधा घंटे के बाद वो दोनों डिफेंस के एक बंगले के बाहर ठहरे थे। वहां पहुंचने तक इन दोनों में कोई बात नहीं। आकिफ अब इस वक्त को कोस रहा था जब इसने सालार को लिफ्ट दी थी। चंद बार हाथ देने पर अंदर से एक आदमी बाहर आया। वो चौकीदार था। सनोबर घर पर है? आकिफ ने इसे देखते ही पूछा। नहीं, बीबी साहिबा तो नहीं है। वो कहाँ है? मुझे पता नहीं। आकिफ ने सलार को देखा और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आकिफ इस आदमी के साथ अंदर चला गया। इसकी वापसी 10 मिनट बाद हुई। तुमको इससे बात करनी है? इसने अंदर बैठते ही पूछा। मुझे इससे मिलना है। आकिफ दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सफ़र फिर इसी खामोशी से तय होने लगा। 9 बज रहे थे जब वो रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे। सलार के लिए वो जगह नई नहीं थी, सिर्फ इस तकलीफ़ का एहसास नया था जो इसे इस बार हो रहा था। आज यहाँ है वो। किसी आदमी ने यहाँ कुछ लड़कियों को बुक करवाया है किसी फंक्शन के लिए, वो भी इनके साथ यहाँ आ रही है। आकिफ ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, तुम भी तो उतरो, बहुत अंदर जाना है। अब सनोबर को तो मैं तुमसे मिलाने के लिए यहाँ नहीं ला सकता। सलार बाहर निकल आया। वो आकिफ के साथ एक बार फिर इन गलियों में जाने लगा। इसे अच्छी तरह याद, वो इस तरह की जगह में आखिरी बार वहाँ कब आया था। वहाँ कुछ भी नहीं बदला था। इंसानी गोश्त की तिजारत तब भी इसी ढके छुपे अंदाज में हो रही थी। नॉवेल अभी जारी। अगर आपको पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।